Very good morning class 12. This is Nalini Singh and today we are going to start lesson 9 which name is financial management. So previously we have learned about all about management and functions like planning, organization, stuffing, direction, controlling, etc. This is the part B which is related to business, finance and marketing. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि हम अपने बिजनेस में फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं, सोर्स क्या क्या है, किस चीज़ में हम कहाँ से क्या फाइनेंस लाते हैं, ये सारी चीज़ें. किसी में भी बिजनेस को जब हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो किस फाइनेंस को कहाँ से लेके आना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर एक्टिविटीज़ और जल्दी से सक्सेस अचीव करने के लिए, राइट. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So it should be worthwhile to recall what Henry Ford once remarked, money is an arm or leg. तो उन्होंने क्या कहा है कि मनी क्या है, मनी आर्म है एंड लेग है. जिस तरह से बॉडी में हमारे लेग और आर्म काम करते हैं उसी तरह से फाइनेंस काम करता है इन द बिजनेस. यू ईदर यूज़ इट और लूज़ इट. हम चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको लूज़ कर सकते हैं. अगर हम सही तरीके से लगा रहे हैं तो वो यूज़ होगा, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं पे भी कोई भी पैसा लगा रहे हैं तो वो होगा लूज़ इट. ठीक है. सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ हेनरी फोर्ड जो simple, it's quite meaningful. It's bring home the significance of money or finance. In business, the role of money has hardly alerted. Funding corner may need a small amount of money and yet may be difficult for it to commerce business simply because it is not in a position to get required fund. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड फंड चाहिए और वो अरेंजमेंट किस तरह से करना है, कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. The next is evaluation of financial management. The mainstream of academic writing and teaching followed the scope and pattern suggested by the narrow and by now traditional definition of the finance function. Finance management or corporation finance as it was then more generally called emerged as a separate branch of economics. The traditional approach to the entire subject of finance was from the point of view of the investment bankers rather than that of the financial decision maker in an enterprise. The traditional treatment placed too much emphasis on corporations finance and too little of financial problem and non-cooperating enterprise. The sequence of treatment was built too closely around specific phases during the life cycle of a typical corporation in which external financial relations happen to be dominant. Matters like promotion, incorporation, merge, consolidation, recapitalization and reorganization left to long-term financial instrument and problem and it corresponding lack of emphasis on problem of working capital management. It is difficult to say at what stage or the traditional approach was replaced by modern approach. The new and modern approach is an एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग एट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द आर्म. तो यहाँ पे क्या है, पुराने जो भी अप्रोच था वहाँ पे सोर्सेज बहुत कम थे और ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंपैरिजन किया गया है. कई सारी डिफ़िकल्टीज आती थी ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो अब क्या वो रिप्लेस किया गया है इन द मॉडर्न अप्रोच. So the new or modern approach is an analytical way of looking the financial problem of firm. तो मॉडर्न टेक्निक्स में देखा जाता है कि क्या क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है और उसको टेक्निकली हैंडल किया जाता है. नाउ द अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो देयर इज अ 3 अप्रोच: ट्रेडिशनल अप्रोच, मेडिवल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. सो ट्रेडिशनल अप्रोच जो बहुत पुराना था, जो इनिशियल स्टेज था, इन द इनिशियल स्टेज of evaluation of financial management as a separate function of the management, the term corporation finance was used to describe financial management. It was restricted to the procurement of fund by corporate enterprise to meet their financial need. Various methods of raising and administrating fund were discussed. The traditional approach developed and dominated the business world during 1920s and 1930s. During 1940s or early 1950s, traditional approach was discarded and replaced by mid-based. तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो इनिशियल स्टेज था और मैं
मेडिवल अप्रोच मतलब जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बीच का था, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मध्यकाल। तो यहाँ पे किस तरह से किसका रोल था? इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप कैश एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें मिड वे में कैश फंड को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। उसके बाद है मॉडर्न अप्रोच। इट्स प्रेजेंट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ बॉर्डर्ड सेंस अकॉर्डिंग टू द अप्रोच फाइनेंस function involves both patience and utilization of finance. The new approach presents and analytical framework of finance. The approach sincere consider the following: so total value of fund, specific assets to be acquired, method of processing fund, the size and growth rate of enterprise. Next है meaning of financial management. So financial management is a part of general management. It is concerned with the managing finance of the business, the smooth functioning and successfully accomplishment the enterprise objectives. So the basic concept is फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पार्ट है जनरल मैनेजमेंट का। इसमें क्या है? फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फाइनेंसिंग मैनेज करना है। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके सोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इट्स राइटली सेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो टू मीट इट्स रूटीन मनी रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द एंटरप्राइज। सफिशिएंट फंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू accelerated and growth rate of the business. Now we come to the objective of financial management. Financial management evaluates how funds are used and proceed. In all cases, it involves a sound judgment combined with a logical approach or decision making. Now we come to the objective of financial management. So there are 8 objectives. First is increase in profit, reduction of cost, risk minimize, financial control, capital budgeting, working capital management, dispositions of profit and wealth maximize. तो फाइनेंशियल जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल को मैनेज करते हैं तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं? तो फर्स्ट है हम अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसको हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि उसका रिडक्शन किया जाए। अब रिस्क मिनिमाइज, बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें आने वाली है उस पर ध्यान देकर रिस्क को कम किया जाता है। देयर इज़ ऑलवेज रिस्क इन कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। दीज रिस्क मे बी ड्यू टू वेरियस अनफॉर्सिन in natural, economic and physical causes. Future is always uncertain, so element of risk will always remain. There is a business. Efforts are made so that these risks may be minimized. Next, फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब फाइनेंस को कंट्रोल करना, कहाँ पे कैसा पैसा जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग, मतलब हम अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना कैपिटल हमें खर्च करना है, ये सारा पहले हम बजट बना लेंगे। आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब जिसको डेली एक्सपेंसेस के लिए हम खर्च करते हैं, कैश एंड ऑल, कैश और बैंक में रखे हुए, इसके लिए क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम मैनेज करते हैं करेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हैज़ बी डिस्पोज ऑफ बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग ओनर। दिस प्रॉफिट मस्ट बी असर्टेन्ड आफ्टर सेटिस्फाई वेरियस क्लेम अगेंस्ट बिजनेस। इट मीन द ओनर शुड गेट रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी प्रॉफिट हमारे बिजनेस में हो रहा है, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बच रहा है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में इन्वेस्टर्स को ओनर को भी मिलना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइज, मतलब अपनी धन दौलत को, अपने बिजनेस को, उसको मैक्सिमाइज करना, तभी हम अपने बिजनेस पे आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ती है या फिर नहीं करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ मैनेजिंग ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने इंटरप्राइज का जो भी हमारा गोल है
उसके सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब हम फाइनेंशियल का यूज़ कम करते हैं तो हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक मैन पावर, कैपिटल एक्सेट्रा, तो उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी होता है और हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूज़ भी हो जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजर्स। बिजनेस मैनेजर्स के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उनके मोरल वैल्यूज़ बढ़ते हैं, और जब हमारा फाइनेंस सही चल रहा होता है तो हम नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं, मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को, अपना बिजनेस स्मूथली रन करा सकते हैं। और जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी ये सारा काम करने में आसानी रहेगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर। कॉमन मासेस ऑफ द कंट्री इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग इन कंपनीज और इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, तो जब हमारा फाइनेंशियल अच्छा होगा, मैनेज होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयज़ को भी होगा, उनकी सैलरी अच्छी होगी, उनके लिए डेवलपिंग प्रोग्राम कराए जाएंगे। नेशनल इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, इसलिए नेशनल के लिए भी कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। Okay, now the next topic is about functions और scope of financial management. Financial management जो होता है उसके functions क्या क्या हैं? So financial management is responsible for estimation of financial requirement. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे बिजनेस पे कितनी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल की, ये सारी चीज़ों का एस्टिमेशन लगाना कि कितनी लगभग हो सकती है। द प्रोक्योरमेंट एंड देयर एप्लीकेशन इन अ मैनर दैट विल बी इंटरप्राइज ग्रो अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जब हमारा बिजनेस पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होती है तो जल्दी ग्रोथ करती है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 टास्क। देयर इज अ 4 टास्क। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। आपको बिजनेस में कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका एक एस्टिमेशन लगाना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अपने बिजनेस में कैपिटल को डिटरमाइन करना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग इन द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द एंटरप्राइज। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो there's a lots of functions of financial management. First is forecasting financial need. फ्यूचर में हमारे बिजनेस को कितनी नीड है फाइनेंशियली, उसको फोरकास्टिंग करना, कैपिटल बजट बनाना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर आपको कुछ डिसीजन प्रिपेयर करने का। मेकिंग डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को बनाना। अप्रीजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल जो भी हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए अप्रीजल प्रिपेयर करना, फाइनेंशियली अप्रीजल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंस परफॉर्मेंस। In addition to the above functions, following advisor functions are also performed. Management of assets, management of fund. According to the financial management perform the following functions: safe custody of fund and investment, general accounting work, maintenance of book of accounts, preparation of financial statement and report, auditing of book of account, cash management, cash disbursement system, calculation of accounting ratio, preparation of cash flow and fund flow, cost accounting। सो ये अकॉर्डिंग टू सर डेले के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक हमने पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेज करना। अब हमको पढ़ना है फाइनेंशियल को की प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो पहले अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको प्लान्स बनाने होंगे। बिफोर एस्टैब्लिशमेंट एन एंटरप्राइज, एन एंटरप्रेन्योर हैव टू कंसीडर वेरियस पॉइंट। इट इंक्लूड सिलेक्शन द बिजनेस प्लेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कई सारी चीज़ों को पहले एस्टिमेशन लगाता है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, प्लेस कहाँ पे होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट की कंडीशन क्या है, फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगी, ऑल दिस थिंग वो पहले भी सोच के रखता है।
विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट बी इमेज। बिना किसी फाइनेंस के अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस को इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। नाउ वी कम टू द मीनिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, ड्यूज, प्रोग्राम्स एंड बजट टू डील विद फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ enterprise. It is an intellectual process which decide to in advance the capital structure and capitalization of enterprise. According to author S. Deving, financial planning includes capitalization, capital structure and management of कैपिटल। तो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज़ें हैं। आपको कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, और मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में आएगी, राइट। नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बिजनेस में जो हम प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है, हमारे बिजनेस का प्रमोशन होता है और वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जब आपके पास प्रॉपर फाइनेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आपका मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट होगा, मतलब सक्षम होगा जो भी कार्य करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जब हमारे पास ग्रोथ होगी, पैसा होगा अच्छा खासा, तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से हमारा बिजनेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है बिजनेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो बना रहे, हमारे बिजनेस में कैश भी होना चाहिए कई सारी चीज़ों के लिए, डेली बेसिस पे एक्टिविटी, रेंट देने के लिए, बिल देने के लिए और सैलरी देने के लिए, इसके लिए बिजनेस लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब कैश फ्लो, कैश का आना जाना। फिर नेक्स्ट है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग कैपिटल सोर्सेज। कैपिटल सोर्सेज के जितने भी सोर्सेज हैं, कैपिटल के जितने भी सोर्सेज हैं, उन सब में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। जब हम प्लान्स बनाते हैं तो सेफ्टी से उसको लाना और उसको यूज़ करना भी रखते हैं, तो सेफ्टी रहती है हमारे कैपिटल को। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी मतलब जो भी हम प्लान्स कर रहे हैं इट शुड बी सिंपल, कि सबको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कुछ भी कंडीशन चेंज हो सकती है, किसी भी तरह की अनसर्टिनिटी आ सकती है, तो प्लान्स ऐसे बनाने चाहिए हमेशा जो कि फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको चेंज कर सकें। नेक्स्ट है फॉरसाइटेडनेस। फाइनेंशियल प्लान शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट इट शुड रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इसमें फॉरसाइटेडनेस का मतलब फ्यूचर के प्लान्स को हमें देख के बनाना चाहिए। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, जो मैंने आपको पहले बताया। यूटिलिटी मतलब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फाइनेंस का जो भी फाइनेंस सोर्सेज है हमारे, उसका सही जगह पे हम सही तरीके से यूज़ करें। होलनेसनेस मतलब हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्रांच को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए फाइनेंशियल से रिलेटेड। इकोनॉमिकल मतलब इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है फेवरेबल टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग इंटरप्राइज बिजनेस में कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहा है, फ्रेमवर्क कर रहा है, वो गवर्नमेंट के फेवर में होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसका इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी इलीगल बिजनेस अलाउ नहीं है, तो उनके रूल्स और पॉलिसीज़ के खिलाफ जाके कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पोजिशंस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अब ये है कि फ़ंड कहाँ से आएगा, तो ये रिलेटेड है लॉन्ग टर्म फंड से। लॉन्ग टर्म फंड कहाँ से हमें मिलते हैं, शेयर से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कैपिटल है। इट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हैव द एबिलिटी ऑफ जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो टू मीट द रूटीन एक्सपेंसेस एंड फिक्स चेंजेस ऑफ एंटरप्राइज। हमारे बिजनेस में डेली जो चार्जेस होते हैं, सफिशिएंट कैश फ्लो बना रहना चाहिए डेली एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस और फिक्स चार्ज को पेड करने के लिए, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम एट मैक्सिमाइज ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर्स होल्डर। स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर टू द मेकअप
of its capitalization. Thus, it includes all the long-term fund consisting of share capital, bond, debenture, loan, and reserve fund. Next, a difference between capital structure and capitalization. So there is a differences between capital structure and capitalization. So capital structure cover both quantitative and qualitative aspect of financing, while capitalization deal with the quantitative aspect of finance. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्वांटिटी भी देखता है, क्वालिटी भी देखता है, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में जो कि कैपिटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट है, यहाँ पे दो बेसिस हैं. फर्स्ट है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल. इंटरनल में कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर जो चीज़ें अफेक्ट करती है, और बाहर एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज़ें जो अफेक्ट करती है. तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, साइज़ अलग होता है, तो वो उसको अफेक्ट करती है. अलग अलग नेचर के बिजनेस अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम. हमारे बिजनेस में इनकम जो हो रही है उसकी रेगुलरिटी कितनी है, सर्टेनिटी क्या है, मतलब निश्चित है कि वो आएगा कि नहीं और लगातार आ रहा है कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है. अगर नहीं आ रहा है तो कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर प्लान्स भी हमारे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स बोरिंग फंड एट रीजनेबल रेट विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल. जो हमने शेयर्स कैपिटल से बोरिंग किया हुआ है रीजनेबल रेट में, जिसको हम कुछ टाइम बाद देना है, वो भी अफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल एसेट्स. कॉमर्स के जो भी हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, वो भी अफेक्टेड होती है फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है डिज़ायर टू कंट्रोल द बिजनेस. आप कितना बिजनेस को कंट्रोल करते हैं वो भी अफेक्टेड होती है, आपके कंट्रोल में कितना है. एज ऑफ फर्म. फर्म की एज क्या है, क्योंकि जैसे जैसे फर्म बड़ी होती है ज़्यादा तो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है. नई फर्म को लोग कम जानते हैं, कम मार्केटिंग होती है. ठीक है. तो एज ऑफ फर्म. द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहरी वातावरण से अफेक्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट. किसी भी बिजनेस का उस कैपिटल मार्केट में कितना कोऑर्डिनेशन है. कैपिटल मार्केट वहाँ होती है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी कंडीशन ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब जो लोगों की जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है. नेक्स्ट है लीगल प्रोविज़न एंड टैक्स प्रोविज़न. जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है वो किस तरह की है, और टैक्स अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो सारी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है. राइट. सो नाउ द नेक्स्ट आफ्टर टॉपिक इज कैपिटलाइजेशन आफ्टर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है. कैपिटलाइजेशन इज़ अन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्लान. जब हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन. इन कॉमन पैरेलेंस द पैसेज कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस में हमने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट, हर एक पैसे को हम देखेंगे कि कितना हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ है. ठीक है. जितना भी पैसा हमने कैपिटल हमने अपने बिजनेस में लगाई है, दैट इज कैपिटलाइजेशन. Broadly speaking, capitalization refers to the act of deciding in advance the term of fund requirement of a firm. It is pattern and administration of capital in the interest of the firm. Capital comprise a corporation ownership capital and its borrowed capital as represented by long-term indebtedness. सो कैपिटल क्या है, हमने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया है ये देखना. तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो जाती है तो हमारे बिजनेस को दोनों केसेस में लॉसेस होता है. नाउ कैपिटलाइजेशन के कितने टाइप्स हैं. सो देयर इज़ अ 2 टाइप्स. वन इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड सेकेंड इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन. सो ओवर और अंडर दोनों कैपिटलाइजेशन हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक होती है. First है over capitalization. An enterprise is said to be capitalized when its long-term funds are more than the amount of proper capitalization as justified by its requirement. अब capitalization फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितना हमें कैपिटल चाहिए, हमारे बिजनेस को कितनी रिक्वायरमेंट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और संभल के कोई भी स्टेप लेना चाहिए. अब कैपिटलाइजेशन में ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन कब होती है, जब हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
ज़्यादा इशू शेयर्स कर दिए हैं, मतलब लोगों से फ़ंड हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया है, तब क्या होता है हमारे पास कैपिटल ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिक्वायर्ड तो कम थी, रिक्वायरमेंट तो कम थी, लेकिन हमने कैपिटल ज़्यादा ले ली, और जितनी कैपिटल हमने ली है उसमें लो इनकम, उसके कंपैरिजन हमारी इनकम लो हुई है, अर्निंग लो हुई है और हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन हमने जो पैसा लोगों से लिया है वो ज़्यादा लिया है। अब हमें नुकसान क्यों है? क्योंकि जो हमने पैसे लिए हैं कुछ टाइम बाद हमको उनका इंटरेस्ट, डिविडेंड, सारी चीज़ें पेड करनी होगी, पर हमने यूज़ तो किया नहीं वो कैपिटल, तो हमने यूज़ नहीं किया और हमें पेड करनी पड़ेगी। तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन है, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देता है और वो पैसा भी रह जाता है और हमें एक्स्ट्रा डिविडेंड लोगों को देना पड़ता है। सो नाउ वी आर कम टू द कॉजेज़ ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। किस किस केसेस में ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन होती है? तो फर्स्ट है, हमने ओवर एस्टिमेट ऑफ इनकम और प्रमोशन पीरियड, हमने ज़्यादा एस्टिमेशन निकाल दिया जो भी इनकम था और प्रमोशन पीरियड का भी। नेक्स्ट है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, जो हमने डिविडेंड पॉलिसी बनाई उसको काफ़ी ढील दे दी, उसको काफ़ी फ्रीली छोड़ दिया। हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन हमने लिया है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में दे दिया, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, इनसफिशिएंट फंड, डिफेक्टिव डिप्रेशन पॉलिसी, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, मतलब प्रमोट करने के लिए हमने ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च कर दिए। ओवर कैपिटल इश्यूज़, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड। नेक्स्ट है इफेक्ट और डिमेरिट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। द इफेक्ट और डिमेरिट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब जो चीज़ें अफेक्टेड होती है, इससे हमारे नुकसान क्या क्या होता है? लॉस ऑफ गुडविल, हमारा गुडविल लॉस होता है, क्योंकि हमारी मार्केट में इमेज एक तरह से डाउन होती है, क्योंकि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी, सही से कैपिटलाइजेशन नहीं किया, लोगों से ज़्यादा पैसा दिया, उतना उनको हम डिविडेंड दे नहीं पा रहे हैं। डिफ़िकल्टी इज़ ऑब्टेनिंग कैपिटल, तो अब जब हमें दोबारा कैपिटल लेना होगा तो उसमें भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन, लोन लेने में भी हमें डिफ़िकल्टी होगी। इट्स क्रिएट आर्टिफिशियल हाई डिविडेंड रेट, हाई डिविडेंड रेट भी ज़्यादा होता है। डिमांड फॉर वाइंडिंग अप कैन बी राइज, अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ओवर कैपिटलाइजेशन के बाद कि हमें अपना बिजनेस को बंद करना पड़े। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फेस कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन को हमें फेस करना पड़ता है मार्केट में। नेक्स्ट है शेयर्स होल्डर रिसीव डिविडेंड एट लो रेट, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिड्यूस ड्यू टू ओवर कैपिटलाइजेशन। वेलफेयर फैसिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते थे, क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, डिविडेंड भी कम रेट पे देना पड़ेगा। इसके बाद जो भी सोसाइटी में प्रोडक्ट ऑफ प्राइस है वो हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस करना होगा। लो क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर को ज़्यादा अर्निंग के लिए लो क्वालिटी की प्रोडक्ट को देना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट्स, मतलब इसमें कंडीशन ये हो सकती है जब वाइंडिंग अप होगा तो कुछ एम्प्लॉयज़ को भी निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब है जो भी हमने एस्टिमेशन बनाया था उसमें इनकम तो हमें ज़्यादा हुई है, लेकिन जो हमें फ़ंड लेना था लोगों से वो हमने क्या लिया, कम लिया, हमारे पास कैपिटल कम आई, तो लेकिन इनकम ज़्यादा हुई, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदायक है। लेकिन एज़ कंपैरिजन टू ओवर कैपिटलाइजेशन ये थोड़ा कम नुकसानदायक होता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? अगर हमने जो भी रिक्वायरमेंट बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं हमने ढील दे दी, या फिर हमने कहीं किसी एक आध चीज़ को छोड़ दिया, तब ऐसी चीज़ें होती है। हम शुरू करते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन, an enterprise is said to be under capitalization when its long term fund are less than amount of proper capitalization as justified by the requirement, मतलब जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट थी कैपिटलाइजेशन की, लेकिन उससे कम हम लॉन्ग टर्म फंड को लिए हैं। ड्यू टू अंडर कैपिटलाइजेशन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द enterprise will be high. Enterprise is said to be undercapitalized when the rate of profit it is making on the total capital. नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं? इट इज़ कॉज ड्यू टू अंडर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग, हमने अंडर एस्टिमेशन कर दिया अपनी अर्निंग को, या हमने बहुत कम बता दिया। प्रमोशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन के समय हमने अपने बिजनेस को प्रमोशन किया। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी बहुत सीमित रखा हमने।
अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी हमने अंडर एस्टिमेट किया, इनकम को भी अंडर एस्टिमेट किया. डिज़ायर टू हैव कंट्रोल ओवर कैपिटल ऑफ एंड मैनेजमेंट, लो प्रमोशन एक्सपेंसेस हमने बहुत कम खर्च किए. इट इज़ कॉज ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट ऑफ रिजर्व फंड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इफ़िशेंसी. नाउ द इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ज़्यादा होंगे, लेबर कन्फ्लीट होगा, शेयर्स होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे बिजनेस में इनकम ज़्यादा हुई है. रॉन्ग एस्टिमेशन होगा इनकम में फ्यूचर का, लोन लेना आसान हो जाएगा, डेंजर होगा लिक्विडेशन के टाइम एक्सेट्रा. ओवर, यहाँ पे नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन आर हार्मफुल. तो यहाँ पे जो भी बताया गया है इसका कहने का मतलब है कि दोनों ही केसेस बुरे हैं हमारे बिजनेस के लिए क्योंकि इसके कुछ ना कुछ प्रो और कॉन्स हैं. लेकिन इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन तो हम ये पाएंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एज़ कंपेरिजन टू अंडर कैपिटलाइजेशन. राइट, नाउ देयर इज ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, इनके बिटवीन है डिफरेंसेस जो आपको अच्छे से तैयार करना है. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स कैपिटल. सो फिक्स कैपिटल क्या होता है आपको पता होगा अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड होता है जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फिक्स कैपिटल को फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे मशीनरी खरीदना है, लैंड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, fixed assets, fixed capital refers to the amount invested to acquire fixed assets. Fixed capital provides the basic foundation on which the structure of business is laid. Capital can be defined as wealth used in the production of future wealth. Every business unit needs मनी ऑफ फाइनेंस इट्स एक्टिविटी. किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को पूरी करने के लिए हर बिजनेस को क्या चाहिए, फाइनेंस. किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगता है तो वो कई सारे सोर्सेज से अपने बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. द मनी इज़ इन्वेस्टेड इन फिजिकल रिसोर्सेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, इन्वेंट्री. जो मैंने आपको बताया था, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन सब के लिए क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड कैपिटल. विच आर यूज बाय द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमें यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग भी होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, लैंड भी होना चाहिए, मशीनरीज भी होनी चाहिए. कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड फ्री एसेट्स. नाउ नेचर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल का नेचर कैसा होता है. सो फिक्स्ड कैपिटल के नेचर को अगर हम देखें तो फिक्स कैपिटल इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म फंड. ये फिक्स कैपिटल कैसा लॉन्ग टर्म फंड है. इट इन्वॉल्व्स हैवी एक्सपेंडिचर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर लगता है. फिक्स कैपिटल अफेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए इंटरप्राइज. देयर इज़ ए टाइम लैग बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिटर्न. इट अफेक्ट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद फ्यूचर ऑफ बिजनेस. देयर इज़ ए मोर रिस्क रिलेटेड विद फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल में क्योंकि ज़्यादा फंड लगा होता है तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. और फिक्स एसेट्स में जो हम पैसा फंड लाते हैं वो कहाँ पे लाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू. नाउ वी आर कम इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड देयर रिक्वायरमेंट. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और फुलफिलमेंट में इंटरफेरेंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. राइट, सो फर्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल. नेचर ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का किस तरह का नेचर है. नेचर ऑफ प्रोडक्शन, हम किस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं. स्कोप ऑफ बिजनेस, फ्यूचर में हमारे बिजनेस का स्कोप क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है. ये एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को एक्सपेंशन फ्यूचर में करना है, कितना करना है, ये सारी. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं. एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है फिक्स कैपिटल को लेके. टेक्निक्स किस चीज़ तरह की हम चूज़ कर रहे हैं. ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस क्या है हमारे बिजनेस का. ये सारी चीज़ें हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फिक्स कैपिटल. हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स कैपिटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे जो भी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी कंपनी कैन बी शो इट फिक्स्ड कैपिटल. जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहाँ से देखते हैं, उसकी फिक्स कैपिटल से. स्टॉक मार्केटिंग, फिक्स कैपिटल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन अ मैटर
of great controversy among the financial advisor. It contrast to the gross working capital. The net working capital represent excess of current assets over current liabilities. Working capital अगर if we are calculating तो हम कैसे करते हैं, current assets माइनस करंट लाइबिलिटीज़ तो इक्वल्स टू, जब करंट एसेट ज़्यादा होता है करंट लाइबिलिटीज़ कम होता है तो माइनस करते हैं, तो जो भी बचता है वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बचती है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग इन इंडिविजुअल करंट एसेट्स टू डे बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस में जो भी पेमेंट करना होता है वो हम वर्किंग कैपिटल के थ्रू ही करते हैं. ठीक है. सो नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब वो जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, तो इसमें फर्स्ट है term of which goods are bought and sold beside a large extent the amount of cash reserve. प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिटर अवेलेबिलिटी कितनी है, पेमेंट किस तरह से हो रहा है, पॉलिसीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पीरियड, समय के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वर्किंग कैपिटल का तो कितने तरह के होते हैं. लॉन्ग टर्म, सो देयर इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. लॉन्ग क्लासिफिकेशन ये सिर्फ कैपिटल का है, वर्किंग कैपिटल का नहीं है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है. तो यहाँ पे 4 टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म. ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार भी पढ़ी है 11th क्लास में. लास्ट है वाटर्ड कैपिटल. सो जो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ होती है. मीडियम टर्म कैसी होती है, जो 10 साल के अंदर तक रहती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए यूज़ करते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होती है, जिसको 1 साल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 6 महीने से 1 साल के बीच में होती है. नाउ वाटर्ड कैपिटल क्या होता है, जब हम कोई भी एसेट्स को उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वाटर्ड कैपिटल होते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होता है, रिमिटेबल डिवेंचर होता है, पीरियोडिक लोन होता है. नाउ द नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होती है, तो हम वर्किंग कैपिटल का मतलब यूज़ कैसे करते हैं इन द बिजनेस. सो देर परचेजिंग रॉ मटेरियल का परचेज करने में, डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस को पेड करने में, रॉ मटेरियल को फिक्स एसेट्स में कन्वर्टिंग करने में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, सैलरी और वेजेस देने में, एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन. So in a financial context, it means the selection of best financial alternative or best investment alternative. Financial decision making is concerned with 3 broad decisions which are as under. तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन तीन डिसीजन है. मतलब फाइनेंशियल डिसीजन में हम जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें जो बेस्ट को चूज़ करते हैं वो है फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल रिलेटेड जो हम डिसीजन बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 बेसिक्स हैं. फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद है फाइनेंशियल डिसीजन, उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसी भी बिजनेस में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं. अ फर्म रिसोर्सेज आर एज इन कंपेरिजन टू यूज टू विच दे कैन बी पुट. A firm therefore has to choose where is invest these resources so that they are able to earn the higher possible return for their investors. The investment decision therefore. अब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में करना क्या है, जो आपने फ़ंड लिया है, जो पैसा आपके पास है, उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कहाँ करोगे ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिले. ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप जो अपने इन्वेस्टर्स हो उनको भी सही अमाउंट पे आप उनको डिविडेंड दे सकते हो. तो ये सारे डिसीजन इसमें लिए जाते हैं. जो भी अगर कैपिटल बजट बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हमें करना कहाँ पे है, और अगर बिजनेस में फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई है तो वो हमें कहाँ से ठीक करना है, कौन से रिसोर्सेज करना है, ये सारी चीज़ों का डिसीज़न लेना. जो भी हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका डिसीज़न लेना. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. किसी भी बिजनेस के प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना लगता है जो हम अपने बिजनेस में प्रोजेक्ट करते हैं. रेट ऑफ रिटर्न, उस बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कम है या ज़्यादा है. द इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल इन्वॉल्व. नेक्स्ट है फाइनेंशिंग डिसीजन.
अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमें पैसा कहाँ से लगाना है, उसके बाद है फाइनेंशियल डिसीजन. So this decision is about the quantum of finance is to be raised from various long-term and short-term sources are studied in working capital. It involves identification of various available sources. The main sources of fund the firm are shareholder fund and borrowed fund. Shareholder fund refer the equity capital and retained earning. Borrowed fund refer to finance raised as debenture or other form of debenture. A firm has to decide the proportion of fund to be raised from either source based on their basic characteristics. सो फाइनेंशियल डिसीजन में हम अपना फ़ंड कहाँ से ला रहे हैं. लॉन्ग टर्म में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे शेयर्स होल्डर, डिवेंचर, इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा. तो हम फाइनेंसिंग सोर्सेज कहाँ से ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल डिसीजन में किस चीज़ के लिए हम कहाँ से किस रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये है फाइनेंशियल डिसीजन में. ठीक है. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. तो कॉस्ट होता है, बिजनेस में कितना रिस्क है, फ्लॉन्टेशन कितना है कॉस्ट का, कैश फ्लो पोजीशन कितनी है बिजनेस में, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, जो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है उसका लेवल क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बिजनेस का कैपिटल मार्केट कैसा है. नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन क्या होता है. डिविडेंड क्या होता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले जो हमें अर्निंग हुई है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. वो हमारा प्रॉफिट होता है. उसके बाद जो हम अपने शेयर्स होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को देते हैं, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं जो फिक्स रहता है, वो क्या होता है, डिविडेंड होता है. सो द डिसीजन इन्वॉल्व हेयर हाउ मच द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. यहाँ पर ये देखा जाता है जब हमने टैक्स पेड कर दिया है तो कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद वो किस हिसाब से शेयर्स होल्डर को देगा और रिटेन जो भी प्रॉफिट बचा हुआ सबको देने के बाद उसको वापस से अपने फंड में रखेगा. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. जो डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स होते हैं, जो हम डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है. अर्निंग, हमारे बिजनेस में पास्ट, करंट और पास्ट अर्निंग कितनी हुई है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हमारे बिजनेस में जो अर्निंग हो रही है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, जो डिविडेंड है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है. नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, हमारे बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है. और फिर है कैश फ्लो, शेयर्स होल्डर प्रेफरेंस, टैक्स पॉलिसी एंड स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा है, कैपिटल मार्केट कैसा है, लीगल कंस्ट्रक्शन कैसा है. ये सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है, क्योंकि उसी हिसाब से हम डिविडेंड देने के लिए डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कुछ सोर्सेज हम बचा के रखते हैं या फिर पिछला बकाया जो पेमेंट है वो, टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है. ठीक है. इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा ख़त्म होता है.